Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading the chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. So children, in the previous video we had studied about the age of social change in Russia and Europe, and also we had studied about the Russian Revolution. Today we will study about the First World War and the Russian Empire. This is the page number 33. In 1914, war broke out between two European alliances, Germany, Austria and Turkey, and France, Britain and Russia. Each country had a global empire, and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. In Russia, the war was initially popular and people railed around Tsar Nicholas II. As the war continued, though, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support wore thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsarina Alexandra, German origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battle, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's army lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited and government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. The war also had a severe impact on industry. Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shop were common. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, रशियन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या कनेक्शन था, किस तरह से उस पर का फर्स्ट वर्ल्ड वार का रशियन एम्पायर पर असर पड़ा, इस वीडियो में हम ये देखेंगे और इस टॉपिक को समझने के बाद फिर नोट्स लिखेंगे। 1914 में यूरोपियन एलियंसेस थे तीन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये सेंट्रल पावर थी, ये एक साइड हो गई और दूसरी साइड फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो ये क्या हुआ, ये आपस में लड़ने लगे और हर कोई जो थे वो ग्लोबल एम्पायर की चाह रखते थे और जो फाइट थी वो बाद में लास्ट में वर्ल्ड वार के रूप में शुरू हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार नाम उसका पड़ गया, क्योंकि धीरे धीरे कोई देश किसी एक की साइड, कोई एक देश किसी एक की साइड उनके साथ ऐड होते चले गए। अब उन्होंने रशिया में जार निकोलस सेकंड का साथ दिया और जो जार था उसने धीरे धीरे जो ड्यूमा जो पार्टीज़ बन गई थी बाद में उनका उसने धीरे धीरे उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। अब जो था सेंट पीटर्सबर्ग का रीनेम कर दिया उन्होंने, उसका नाम दे दिया पेट्रोग्राद, क्योंकि जो सपोर्ट था जार का वो काफ़ी कम हो चुका था धीरे धीरे, क्योंकि वो अब मनमानी करने लगा और युद्ध तो लगातार चल ही रहा था। आर्मी थी वो लगातार ट्रेंचेस में लड़ रहे थे ईस्टर्न फ्रांस में, और ईस्ट में जो क्या था आर्मी जो थी वो
उनकी लार्ज क्वांटिटी में थी, तो उन जो बैटल थी उसमें जो रशिया के लोग थे, रशिया की जो आर्मी थी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वो लड़ नहीं पा रहे थे, उनको हथियारों की कमी हो रही थी, वो बीमार होने लगे थे, घबराने लगे थे। और इस तरह से रशिया की जो आर्मी थी वो धीरे धीरे करके उनका मॉरल डाउन होने लगा। सेना थी वो पीछे हटने लगी। तो रशियन सेना जब पीछे हटने लगी तो बिल्डिंग वगैरह को डिस्ट्रॉय करती चली गई, फसलों को डिस्ट्रॉय करती चली गई कि जो अपोजिट पार्टी है वो उनके यहाँ पर आए तो वो यहाँ सर्वाइव ही ना कर पाएँ। और इसमें इस कारण से जो 3 मिलियन लोग थे वो रिफ्यूजीज़ बन गए, उनका शेल्टर वगैरह, उनके घर वगैरह सब तबाह हो गए। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा, और इंडस्ट्रीज़ क्योंकि सप्लाई वगैरह बंद हो गई थी दूसरे देशों से। जर्मन का कंट्रोल, जो बेल्टेविक सी थी उसमें जर्मन ने कंट्रोल कर लिया, तो सप्लाई ख़त्म हो गई, तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो भी नहीं बन पा रहे थे रशिया में। और यहाँ तक कि 1916 में रेलवे लाइन थी जो थी वो भी बहुत जल्दी टूट गई, बाकी यूरोप के मुकाबले रशिया की बहुत जल्दी टूट गई। तो इसके बाद जो अच्छे मजबूत और पावरफुल जो दिखने में ताकतवर लोग थे उनको वार में झोंक दिया जाता था, तो बचे हुए जो लोग थे वो लेबर ही कर पाते, मतलब आम जनता जो थी वो वर्कशॉप और लेबर यही काम वहाँ पर कर पा रही थी। तो धीरे धीरे उनको भी क्योंकि जो अच्छा लार्ज सप्लाई जो थी ग्रेन की वो आर्मी को खाना देने में चली जाती, तो यहाँ पर लोग जो सिटी के लोग थे वो खाना तक को तरसने लगे। आटे की कमी हो गई, रोटी की कमी हो गई, और जो ब्रेड शॉप्स थी उनमें दंगे होना तो एक कॉमन सी बात हो गई। चलिए हम नोट्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर, यहाँ से आपको लिखना है। तो लिखेंगे, इन रशिया द वार वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रीव थिन, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, रशियन आर्मीज लॉस्ट badly in Germany and Austria. There were 7 million casualties and 3 million refugees in Russia. The war also affected the industry. There was labor shortage, railway lines were shut down and small workshops were closed down. There was shortage of grain and hence of bread. तो चिल्ड्रन यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।